Hello students, in previous video we have completed lesson number 8 and now today we have to start the exercise of this lesson. But before starting the exercise I want to revise this lesson so that it will be easy for you to do the exercise. So let us revise this chapter once again. So the chapter is food, and in this chapter we have discussed about the different sources of food and why food is necessary for us. So food gives us energy to do work, and all living things need food to live, grow and remain healthy. And we have discussed about the different sources of food. So we know that there are two main sources of food, that is plants and animals. And we have, first of all, we have discussed about the food that we get from the plants. So there are many types of plant on the earth, so they provide us many forms of food materials, or some of the food items we eat in raw form and some in cooked form. That means we cook before eating. So खाने से पहले हम उनको कुक करते हैं. एंड रॉ मीन्स कच्चा, जैसे फ्रूट्स को हम कच्चा ही खा लेते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स को भी हम जैसे रेडिश, कैरेट, रेडिश, इनके हम सैलड्स भी खाते हैं और इनको हम ऐसे भी खा लेते हैं. सो कुछ को हम रॉ फॉर्म में खाते हैं एंड कुछ को हम कुक करके खाते हैं. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. अलग अलग पार्ट्स खाते हैं हम प्लांट्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीड्स. We eat seeds of some plants and like wheat, rice and pulses. So we grind the seeds of the wheat to make a flour, wheat flour. So wheat flour means आटा बनाने के लिए हम जो wheat के seeds होते हैं उनको grind करते हैं. Grind means पीसते हैं. And we also eat rice and maize, rice or maize grains, which are the seeds of their respective plants. तो rice जो हम खाते हैं और जो maize है वो भी उनके plants के क्या हैं, seeds हैं. So you can see here जो seeds हैं, seeds से हमने wheat flour बनाया, wheat plant के seeds से wheat flour बनाया, wheat flour से हम चपातीज, पराठाज, पूरीज, हम कई चीज़ें बना के खाते हैं. Then pulses are also the seeds of their plant. Pulses are the dal जो आप खाते हैं that are pulses. So that you also eat, that are also the seeds of their plants. Now next is your nuts. Nuts like peanuts, walnuts, cashew nuts, almonds, these all are the dry fruits, you all know, and these dry fruits are also the seeds of their respective plants. ये अपने अपने plants के seeds होते हैं. And these nuts provide a lot of energy to us and also keep our body warm. ये हमारी body को बहुत energy देते हैं और हमारी body को warm भी रखते हैं. warm means गर्म भी रखते हैं. So generally we eat them in during winter season. हम इनको कौन से सीजन में, winter season में ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना. Then we have discussed about the other part of the plant that we eat. So that is leaves. So we eat leaves of different plants. हम साग खाते हैं हम लोग, स्पिनच, फेनुग्रीक, मेथी, पालक है ना, स्पिनच, पालक, कैबेज एंड मस्टर्ड, इन सबको हम क्या करते हैं, पहले कुक करते हैं. दीज ऑल आर द लीव्स ऑफ दियर प्लांट्स. और इनको कुक करते हैं और फिर हम इनको खाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको पता है लीव्स जो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए हम उनको ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं. एंड दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ. हमको बीमारियों से बचाते हैं ये, और इन बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड वी ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट एंड करी लीव्स
and are used for garnishing and flavoring our food. और हमारे खाने को फ्लेवर देने के लिए और उनको सजाने के लिए भी हम इन लीव्स को यूज़ करते हैं, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है उसमें और टेस्टी भी हो जाता है हमारा खाना. एंड द नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेम. वी ईट स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स. बहुत प्लांट्स के हम स्टेम्स खाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटैटो. पोटैटो जो है ये बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ इट्स प्लांट. तो पोटैटो इज़ अ स्टेम और ये कहाँ पर होती है? अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे होती है स्टेम अपने प्लांट की. देन ओनियन, जिंजर, कमल काकड़ी, दीज ऑल आर द स्टेम ऑफ दियर प्लांट्स दैट वी ईट. सो हम इन प्लांट्स की स्टेम्स को खाते हैं. सो अभी तक हमने सीड्स, लीव्स, स्टेम्स. नाउ द रूट्स. हम बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स को भी खाते हैं. सो वी ईट द रूट्स इन रॉ और इन कुक्ड फॉर्म. सो कुछ प्लांट्स के रूट्स को हम कच्चा भी खा लेते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश और बीट रूट, और इनको हम कुक करके भी खाते हैं. सो ऑल दीज आर द रूट्स ऑफ दियर प्लांट्स. सो यू ऑल लाइक कैरेट. सबको पसंद है ये कैरेट, और दीज आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. So you must eat these things. Next is your fruits, and you all know that fruits are also very good for our health. They keep us fit and healthy and protect us from diseases. So there is no need to explain about the fruits. Fruits तो आपको सबको पता ही है. There are different types of fruits. You can see here the pictures. Sweet and juicy fruits like mangoes, oranges, grapes, muskmelon and watermelon are eaten raw. हम उनको कच्चा ही खा लेते हैं. And there are some fruits जिनको हम पका के खाते हैं as a vegetable. उनको पहले कुक करते हैं, उसके बाद हम उनको खाते हैं, like brinjal, ladyfinger and tomato. टोमेटोज को हम रॉ फॉर्म में भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, एज ए सैलड भी खाते हैं हम. सो देर आर फ्रूट्स जिनको हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, और देर आर सम फ्रूट्स जिनको हम वेजिटेबल की फॉर्म में कुक करके खाते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स जिन्हें हम खाते हैं. सो वी ईट सीड्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. सो दैट मीन्स हम ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के खाते हैं. एंड इसमें मेंशन नहीं है, वी ऑल्सो ईट द फ्लावर्स ऑफ मैनी प्लांट्स. हम कई प्लांट्स के फ्लावर्स को भी खाते हैं. सो नेक्स्ट इज योर फूड फ्रॉम एनिमल्स. नाउ प्लांट्स cannot always fulfill all the needs of people of different world, people in the world. So जो वर्ल्ड में अलग अलग लोग हैं, उनकी जो नीड्स है वो प्लांट से फुलफिल नहीं होती सब लोगों की. तो इसलिए उनको क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपने फूड के लिए, इसलिए वो एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम द फूड फ्रॉम द एनिमल्स आर milk. So we take milk of cow, buffaloes and goat, and we also like to eat the milk products like curd, cheese, ice cream, kheer, etc. So and milk is also very important for growing children like you. So आपको जरूर पीना चाहिए milk. Then eggs we also get from the पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन, गोज एंड डक, जो बहुत सारे लोग खाते हैं. एंड देन मीट भी बहुत लोग खाते हैं. सो फिश, मीट is taken by many people. So these all are the food that we get from the animals. Now next is your food needs. So we have discussed that different people need to and eat different amount of food. अलग अलग जो people हैं वो अलग अलग amount का food खाते हैं.
कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन. सो ये इन चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कैसा खाना, नहीं कितना खाना खाएंगे और कैसा खाना खाएंगे. सो फूड एंड एज. सो आई विल नॉट डिस्कस इट इन डिटेल कि एज के ऊपर कैसे डिपेंड है. ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी. जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा वो ज़्यादा खाना खाएगा, जो कम हार्ड वर्क करेगा वो कम खाना खाएगा. जो बैठा रहेगा वो कम खाना खाएगा, जो ज़्यादा लेबर या हार्ड वर्क करेगा वो ज़्यादा खाना खाएगा. जो मेल्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा खाना खाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. और एज तो आपको पता ही है, जैसे जो छोटा होगा, कम एज का होगा, छोटे बेबीज जो है वो कम खाना खाते हैं. ओल्ड पीपल भी कम खाना खाते हैं, जो यंग होंगे वो ज़्यादा खाना खाते हैं. नेक्स्ट इज योर फूड एंड एज. सो वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो फूड एंड एज कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे. जब बर्थ से 4 मंथ की एज तक बेबी सिर्फ मिल्क पीते हैं, और जब वो 6 मंथ्स के होने लगते हैं वो सेमी सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे सो दैट वो इजीली उनको खा सके, बिकॉज उनके टीथ नहीं होते. देन ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड यंग पर्सन्स लाइक यू, यू हैव टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होना चाहिए? सारी चीज़ें, राइस, वेजिटेबल, चपाती, दाल, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. और जो ये डोसा, इडली, उत्पम, सांभर है, ये साउथ इंडियन डिशेज है. ये जनरली आप नहीं खाते हैं डेली अपने डाइट में, पर ये बाकी चीज़ें हम ज़रूर खाते हैं. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दैट वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द गुड डाइट. डाइट के साथ हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए. इट इज़ गुड, it helps in the digestion of our food and throwing out the waste from the body. हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. एंड द ओल्ड पीपल. सो ओल्ड पीपल कैसा खाना खाना प्रेफर करते हैं? दैट वी हैव डिस्कस्ड. दे प्रेफर इजीली डाइजेस्टिबल सिंपल फूड. तो जो ऐसा फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और सिंपल फूड हो, उसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं. सो इसलिए वो उनका डाइजेशन जो होता है स्लो हो जाता है, तो उनको इजीली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड वो प्रेफर करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. And in the next video, we will discuss about the exercise and the question answers of this lesson. Thank you.